Okay, most of you have joined the class. Now we will start our topic, that is skimming and scanning. Skimming and scanning are two speed reading techniques. Skimming and scanning are these are two speed reading techniques, right? And we will talk them about the definitions, the different definitions of skimming and scanning, and then the different types or purposes of doing skimming, and that where we do skimming or where we do skimming and where we do scanning, right? What is the differences between them, and what is the process or method of doing these both speed reading techniques. So these are two speed reading techniques, and we learn them to apply them in our learning or in our reading. When we read something, these are very important to know about, that how to do skim some material, some written text when we are going to read some content, and where we do scanning, or how we should do scanning, right? So skimming is basically when there is no need to memorize, you can say that the most of the part of the content which you are going to write. स्किमिंग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे यानी हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत सारा कंटेंट या मटेरियल मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने जस्ट जो है ना उसके मेन पॉइंट्स या मेन आइडियाज देखने हैं कि इस किसी भी टॉपिक क्या डिस्कस किया गया है, किस सब्जेक्ट पे बात हुई है। सो देयर वी डू स्किमिंग। Basically, we can say that as its name shows, that skim something. What is skimmed milk? We all know that what is skimmed milk, the cream of the milk, right? Basically, skim is, or the meaning of the word skim or skimmed milk, for example, as you know that the skimmed milk is to the cream of milk, right? So same is the case with the reading material or any content which we are going to read, that we have to skim that content. We have to skim, or we have to get the cream of that written text or written material or the article or the chapter which we are going to study or read, right? बेसिकली स्किमिंग क्या है कि हमने जो भी हम मटेरियल पढ़ने जा रहे हैं, जो भी रिटन टेक्स्ट हमारे पास है, कोई आर्टिकल है, कोई चैप्टर है, कोई बुक है, उसको हमने स्किम करना है। उसके हमने क्रीम निकालनी है। क्रीम मीन्स द मेन आइडियाज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज ऑफ दैट मटेरियल, राइट? जो भी उसमें मेन आइडियाज, इम्पॉर्टेंट आइडियाज हैं, वो हमने निकालने हैं, और वो स्पीडीली रीडिंग करते हैं। ये नहीं कि हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे और डिटेल में जाके जो है ना इंटेंसिव रीडिंग करते हुए उसे पढ़ेंगे, नहीं। हमने जस्ट जो है ना जस्ट जो भी कंटेंट हमारे पास है उससे गो थ्रू होना है तेजी से, राइट? दैट व्हेन वी डू स्किमिंग, while doing skimming we have to go through, or we have to read speedily, so speedily that we read 1000 words per minute almost। यानी जब हम स्किमिंग करते हैं तो कम से कम हम हजार इतनी हमें करनी होती है कि हमने कम से कम 1000 वर्ड जो है ना वो स्किमिंग करते हुए पढ़ने हैं, ठीक है? पर मिनट, 1000 मिनट, 1000 वर्ड्स पर मिनट पढ़ने हैं, राइट? सो दैट इज स्किमिंग। दैट that skimming is to get an overall picture of the content, right? get the gist of get the gist of the content, just get the main ideas, just getting the main ideas or bird's eye view of the content which we have। सिर्फ हमने मेन आइडियाज उससे कंटेंट के निकालने हैं, जो भी मटेरियल हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी हमारे पास है। हम पर्पसेस के डिस्कस करेंगे कि पर्पसेस क्या है। पहले हम साथ में स्कैनिंग को डिस्कस करेंगे कि स्कैनिंग क्या है। स्कैन इज टू लोकेट आउट समथिंग, टू सर्च फॉर समथिंग, राइट? स्कैनिंग, स्कैन जब हम कर रहे हैं तो हम किसी वी हैव टू लोकेट आउट सम पर्टिकुलर और अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन
विच इज़ रिक्वायर्ड टू अस। दोनों डिफरेंट है, दोनों का प्रोसेस जो है, जो मेथड है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन दोनों का पर्पस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। स्किमिंग जो है वो की जाती है, बिल्कुल अननोन मटेरियल की स्किमिंग की जाती है, अननोन कंटेंट की स्किमिंग की जाती है, जो हम जिस कंटेंट से हम पहले से फेमिलियर नहीं है, एंड वी ट्राई टू know the main ideas or get the main ideas of that material by reading that content speedily. While on the other hand, scanning is to just search out or locate out the particular bit of information that is required to us. Right? So here we have the proper definitions of skimming. That what is skimming? For example, if you are not trying to remember a major portion of facts and details, you might concentrate on reading only main ideas. So when we don't need to remember the major portion of the facts, or we are not going to read the content in detail with deep understanding intensively. जब हम किसी भी मटेरियल को इंटेंसिवली जो है ना वो डिटेल के साथ नहीं पढ़ने जा रहे, जो है ना वो अभी हमने उसके तो हमें उसके फैक्ट्स और डिटेल्स वगैरह, जो भी एग्जांपल्स वगैरह, जो भी फैक्ट्स बाकी दी हुई हैं, हम उनको स्किप करेंगे, हम उनको नहीं पढ़ेंगे, जो है ना उनको स्किप करते जाएंगे, और सिर्फ जो मेन आइडियाज़ हैं वो हम निकालते जाएंगे, और मेन आइडियाज़ निकालने का क्या प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। राइट? तो ये हमें ज़रूरत नहीं है कि हमने डिटेल में किसी मटेरियल को पढ़ना है या इंटेंसिवली स्टडी करना है, तो तब हम स्किमिंग करते हैं। यू माइट रीडिंग ओनली मेन आइडियाज। This method of reading only main ideas is called skimming. So, method of reading only main ideas is called skimming. Skimming refers to the process of reading only the main ideas within a passage and simply glancing at the remainder of the material. So, while doing skimming, we just read only main ideas. We just read only main ideas within the content, and we just glance over all the other material details or facts which are given in that article or chapter. So it is used to get an overall picture of an article. That is just to get bird's eye view of the picture of the content. Clear? Now we will come to the scanning. That what is scanning? If you are looking up the date of a historical event in your history text, for example, we are reading some history text and we need to locate out for a particular event on some particular date. The date we have that on this that date some historical event has had been taken place, right? So we have to locate out the event, or for example we have the event, that particular historical event, we have to locate out search for the date, right? So we have to scan that history text. You will skip over everything except the exact passage that contains the information. सो एंटिसिपेट करते हुए, यानी फॉर इसकी स्कैनिंग की एग्जांपल है कि हमारे पास एक हिस्ट्री टेक्स्ट है, और जो है ना हमने उसमें से कोई इवेंट कोई इवेंट जो है ना वो सॉर्ट आउट करना है कि इस डेट पे क्या इवेंट हुआ था। हमारे पास डेट हमें पता है कि इस डेट पे, लेकिन हमें इवेंट सॉर्ट आउट करना है कि इस डेट पे कौन सा इवेंट हुआ था, रूनमा हुआ था, या जो है हमारे पास इवेंट है और हमने डेट सर्च आउट करनी है। यानी मीन्स टू से वी हैव ऑलरेडी सम इंफॉर्मेशन और सम क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सर्च फॉर, जिसके लिए हमें तलाश करना है। तो हम जो है ना वो डिफरेंट स्टेप्स से होते हुए जो है ना एग्जैक्ट उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचेंगे, ना कि जो है ना पूरा टेक्स्ट पढ़ते जाएंगे। सारी टेक्स्ट नहीं पढ़नी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन है उसको स्किप करते जाएंगे हम। दिस टेक्निक ऑफ स्किपिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन
is called scanning. So scanning is the method looking for a particular fact or an answer to question. Okay, we were discussing about scanning, that how what is scanning and how to scan something. So scanning is to locate out or search for a particular bit of जैसे हम टेक्स्ट की बात कर रहे थे कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट में अगर आपने किसी इवेंट पे कोई डेट जो है ना रूनमा हुआ है तो उस पे हमने कोई इवेंट देखना है कि किस डेट पे क्या इवेंट हुआ था, या कोई इवेंट है तो हमने डेट सॉर्ट आउट करनी है, तो जो है ना उसको बाकी सारे मटेरियल हम उसमें स्कैन करते हुए सारा स्किप कर देंगे. जस्ट वी विल गेट टू दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और दैट पैसेज वेयर आवर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लाए. जस्ट हम बाकी सारे मटेरियल को स्किप करते हुए हम जस्ट उस डायरेक्ट उस पर्टिकुलर पैसेज या कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है. राइट, सो दैट इज स्किमिंग. Okay, the scanning is the method looking for a particular fact or an answer to question. It can be best described as looking than a reading process. So scanning is the method looking for a particular fact or an answer to question. It can be best described as looking than a reading process. So scanning is, you can say that that is not actually a reading process. Rather, you can say that it is looking over or glimpsing over the written material or written text, right? So ये आप ये नहीं कह सकते कि स्कैनिंग एक रीडिंग टेक्निक नहीं है, बल्कि रीडिंग के बजाय ये हम कह सकते हैं कि हम जो है ना जस्ट ग्लांस डाल रहे होते हैं चीज़ों पे, सारे रिटन टेक्स्ट पे हम जस्ट नज़रों से गुजार रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि हमारी एक्चुअल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कहाँ पे हमें मिलेगी. So it can be best described as looking than a reading process. हमें रीडिंग प्रोसेस नहीं बल्कि लुकिंग प्रोसेस कहेंगे. ओके जी, ये हमारे पास एग्जांपल है for scanning, that as you look for the information you need, you ignore everything else. When you finish scanning a page, the only thing you should know is whether it contained the information you're looking for. यानी जब जब हम किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लोकेट आउट कर रहे हैं, वी आर लुकिंग और सर्चिंग फॉर सम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, and when then we ignore every you can say that everything or the content which is discussed that material, we'll just get to that particular information which we needed. And when we finish scanning some page or some content, then we should know that the information which we have got that is accurate, right? और हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी इंफॉर्मेशन, यानी स्किमिंग में आप कह लें स्किमिंग और स्कैनिंग में क्या डिफरेंस है. बेसिक डिफरेंस जो है ना वो ये है कि जब स्कैन आप इससे समझ सकते हैं कि स्किमिंग जब हम कर रहे होते हैं तो वी आर क्वाइट अननोन टू द टॉपिक और टू द मटेरियल विच वी आर गोइंग टू रीड आउट, राइट. जब हम स्किमिंग कर रहे हैं तो वी आर क्वाइट न्यू टू दैट टॉपिक. वी आर नॉट familiar with the of the article or the chapter or the written text. While when we do when we do scanning, we have something with ourselves to about something, right? We have a question to search for that, to search for the answer of that, right? We have some particular point or some particular information to search for other information about that. ठीक है, तो स्किम करते हुए हमारे पास जो हम कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं वो हमने पहले से नहीं पढ़ा हुआ, हम उससे अनफेमिलियर हैं और हम उसे पढ़ के उसमें से जो है ना वो मेन आइडियाज उसके निकालेंगे. लेकिन हमने उसे पढ़ना तेजी से है और उसके डिटेल्स और फैक्ट्स डिटेल्स एग्जांपल्स वगैरह में नहीं जाना. जबकि स्कैन करते हुए हमारे पास पहले से एक कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है,
या जो है ना हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे हिस्ट्री टेक्स्ट के बारे में पता है तो हमारे पास डेट है जिस पर इवेंट हमने देखना है, या इवेंट है तो हमने उसके बारे में डेट सर्च आउट करनी है। तो यानी हमारे पास पहले से एक मटेरियल है। या आपको इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि जैसे हमने डिक्शनरी डिक्शनरी में कोई वर्ड देखना है, उसके किसी वर्ड की एटमोलॉजी देखनी है, उसकी डेफिनेशन देखनी है, या उसके सिनोनिम्स देखने हैं, उसके मीनिंग देखना है, तो हमारे पास पहले से एक वर्ड है, एंड वी विल लोकेट द मीनिंग और द डेफिनेशन और द एटमोलॉजी और द सिनोनिम्स वट एवर वी वांट related to that word. We will search for that our required information in the dictionary, right? That is scanning. और वो जो है ना, यानी हम हमारे पास पहले से कोई एक चीज है और हम उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। we have to we need to search for, you can say that, answer of our question, right? So that is scanning. और उसमें हम क्या करेंगे डिक्शनरी में, we know that how to search a word in a dictionary. We will just skip everything, every other thing, every other words in the dictionary, and by alphabetical order we will just get to that particular word which we need to search, right? हम जो है ना, हमें पता है कि हमें डिक्शनरी में कोई वर्ड किस तरह से तलाश करना है। हम सारे बाकी वर्ड्स जितना भी मटेरियल है किसी भी डिक्शनरी में उसे स्किप कर देंगे, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अगर हम कोई और वर्ड देखना शुरू कर देते हैं, इट मीन्स वी आर बिकमिंग एस्ट्रेड। हम जो है ना वो इधर उधर भटक रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने जस्ट जो है ना वो जस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें पता है कि उसकी क्या ऑर्गेनाइजेशन, किसी डिक्शनरी की क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स दिए होते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से होते हुए हम जो है ना अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तक, रिक्वायर्ड वर्ड तक पहुंच जाएंगे इजीली। सो दैट इज स्कैनिंग। एग्जाम्पल देखें जी। फॉर इंस्टेंस, in a university Pakistan studies course, you may find that some content and details are basic, which you have studied in college course. You can afford to skip some definitions, facts and details you already know. So अब आप लोग बता सकते हैं कि ये किसकी एग्जाम्पल है, स्किमिंग की है या स्कैनिंग की है? raise your hands and tell me in the chat through message कि आपके ख्याल में ये किसकी एग्जाम्पल है, स्किमिंग की है या स्कैनिंग की है? That for instance, in a university Pakistan studies course, you may find that some content and details are basic when you have studied. For instance, in a university Pakistan studies course, you may find that some content and details are basic which you have studied in college course. ठीक है, तो आपको पता है कि आपने पहले से प्रीवियस क्लासेस में आपने पाकिस्तान स्टडीज का कोर्स लिया होता है, पढ़ा होता है। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वी नो अबाउट दैम, राइट? सो वी डोंट नीड टू रीड द कंटेंट इन डिटेल, एंड the things which we have already read or which we already know about them, about those, we don't need to read them again and again in detail. So we can skip, we are able to skip all those details or the content which we have already know about, right? And we will just get the main ideas or definitions of the main ideas of that content which we have not studied speedily. तो यूनिवर्सिटी कोर्स जो है ना, हम सबने पहले से पढ़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना बार बार रिपीट हो रही होती हैं, तो हमें पता होता है कि ये चीज़ें हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो तेज़ी से देखते हुए किसी भी कंटेंट को जो हम पढ़ रहे हैं उसको तेज़ी से जो है ना ग्लिम्प्स, उसके ऊपर एक नज़र डालते हुए, एक झलक डालते हुए, नज़रों से गुजारते हुए एक तरह जो जो हमने मटेरियल, जो डिटेल्स हम पहले पढ़ चुके हैं हम उसे स्किप कर देंगे, और जो लगता है कि हम ये नई चीज़ें हैं हम बस पढ़ते जाएंगे और मेन आइडियाज उसमें से लेते जाएंगे। तो दैट इज स्किमिंग, राइट? अब आ जाएं जी डिफरेंस की तरफ। दैट व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन, डिटेल में तो दोनों में ही स्टडी नहीं करना, ठीक है? डिटेल में तो ना आपने स्किमिंग में करना है, ना आपने स्किमिंग में रीड करनी है, और ना स्कैनिंग में ही। लेकिन ये है कि स्किमिंग जो है ना, स्किमिंग while doing skimming,
we have to read almost 1000 words per minute, and on the other hand, while doing we have to read, or you can say that looking over the content with the speed of 1500 words per minute. Yes, two participants raised hand. Alijan, yes, you raised hand. Do you want to ask any question? You can ask in the by writing in chat. थोड़ा सा टाइम रह गया है, हम जल्दी से इसको, मैं इस मीटिंग को एंड करने लगी हूँ और दोबारा से ज्वाइन करते हैं, तो आप लोग उसे ज्वाइन कीजिएगा। मैं दोबारा से मीटिंग कॉल करते हैं। ओके, मैं इसको एंड करने लगी हूँ, क्योंकि फिर हम जो है ना टाइप्स वगैरह डिस्कस करेंगे, तो वो फिर दरमियान में जो है ना वो इंटरप्शन होती है, तो इसलिए मैं टाइप्स जो है ना वो दोबारा से मीटिंग कॉल करके फिर ही स्टार्ट करती हूँ। ओके, so I'm going to end the meeting, and you please join the next meeting. Okay, before discussing skimming versus scanning, I would like to discuss about the different types of skimming. Different types, आप टाइप्स कह लें या जो है ना कह रहे हैं कि जो है उसकी पर्पसेस हैं, 3 डिफरेंट पर्पसेस हैं कि हम स्किमिंग क्यों करते हैं या हमें क्यों करनी चाहिए स्किमिंग, और कहाँ कहाँ स्किमिंग हम लोग करते हैं या करनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे स्लाइड नहीं है आप लोगों को, मैं जो है ना अपने स्नैप्स मैंने लेनी थी, तो खसूसियत की वजह से और कुछ लैपटॉप की टैब के इशू की वजह से नहीं आप लोगों को सेंड कर सकी। अब मेरा टैब और लैपटॉप का इशू वो रिजॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों का एक ग्रुप भी जो है ना गूगल क्लासरूम का ग्रुप भी बना दूंगी इंशाल्लाह। आज आप लोगों को जो मिल जाएंगी डाटा वगैरह सभी, और उसका कोड मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो वहाँ से आप लोग अपना डाटा अपनी असाइनमेंट वगैरह अपलोड भी कर सकते हैं, और जो है अपने आपको जो कंटेंट है वो भी मिल जाएगा। वो जो बुक आप लोगों को मैंने बताई थी कैथलीन टी मिक वाटर की कॉलेज स्टडी रीडिंग बुक, उसकी स्नैप्स में आपको लेके जो है ना वो आपके CR फहद को भेज दूंगी, वो मुझे PDF फाइल बना के भेज देंगे, तो फिर आप लोग जो है ना ग्रुप में आपके साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें इसकी जो डिटेल्स है ना, ये दोनों टॉपिक जो हमने पढ़ रहे हैं और जो पढ़ लिया है, नोट टेकिंग और स्कैनिंग, दोनों की डिटेल से आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। और आप लोगों को आई थिंक तक तो पता चल चुका होगा कि आप लोगों के पेपर जो हैं वो ऑन कैंपस एग्जाम होने हैं, आपके एग्जाम ऑन कैंपस होंगे, ऑफ जो है ना ऑनलाइन नहीं होने, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि आपको ऑन कैंपस एग्जाम ये फाइनल डिसीजन हो चुका है, और ऑन कैंपस एग्जाम में the chances are more that your exam will be a subjective type, right? Subjective type होगा जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है ना वो MCQs भी इंक्लूड किए जाएं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सब्जेक्टिव ही होगा। तो उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है, डिटेल में आपने पढ़ना है, और वो मैं आपको जो है ना इन चैप्टर की रीडिंग्स आपको भेज दूंगी, इन दो टॉपिक्स पे जो चैप्टर्स हैं उनकी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, हम अब आते हैं टाइप्स की तरफ। 20 नवंबर से या 20 के बाद आपके एक्सपेक्टेड है एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होने, ऑनलाइन एग्जाम्स पहले LMS पे और गूगल फॉर्म्स पे लिए गए थे। तो अब अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि दोबारा से लॉकडाउन वगैरह का खतरा है, जैसे कि अब केसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो फिर जो है ना फिर आपके एग्जाम हो सकता है कि ऑनलाइन लेने पड़े। लेकिन अभी तक जो फाइनल डिसीजन है वो यही है कि क्लासेस आपके ऑनलाइन होंगी और एग्जाम्स आपके ऑन कैंपस होंगे। क्लासेस के बारे में, क्लासेस भी जो है ना वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी स्लाइड्स। क्लासेस के बारे में भी कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए, 2 या 3 के ग्रुप्स बना के हर क्लास का, और जो है ना 5 हफ्ते एक ग्रुप को बुलाया जाए, 5 हफ्ते को इस तरह से दूसरे ग्रुप को। तो इस तरह से अभी कोई जो है लायामल तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है कि क्या किस तरह से होगा। फिलहाल अभी ऑनलाइन क्लासेस ही हैं और आपकी डिसीजन यही है कि एग्जाम्स जो है ना वो ऑन कैंपस होंगे। ओके, we have discussed the definition of the skimming and scanning and the differences between these two a little bit। हमने जो है ना प्रॉपर डेफिनेशंस डिस्कस किए हैं और थोड़ा सा
डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस किए हैं और थोड़ी सी आपको मैंने एग्जांपल्स बताई हैं एक दो स्किमिंग से रिलेटेड और स्कैनिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब आ जाए टाइप्स की तरफ। टाइप्स आप बेसिकली कह लें कि टाइप्स जो हैं वो पर्पसेस हैं that where we should do skimming and why we should do skimming. So there are three types of doing skimming. First one is pre-reading, second one is skim reading, and third one is रिव्यू स्कीमिंग। राइट, वो यहाँ पे नहीं है, स्लाइड में नहीं है, लेकिन जो आपको मैं जो बुक के चैप्टर्स की इमेजेस भेजूंगी उसमें डिटेल से दिया हुआ है उनके बारे में, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। So here we have three types, or you can say that three purposes of doing skimming. First one is pre-reading. Second one is reading, and third one is review skimming. So pre-reading, what is pre-reading? As its name shows, that pre-read something, that you have the planning to read some content or some material or written text in detail later on, but at the time, at the spot, you want to read the content just to get the main ideas of that, right? यानी प्री रीडिंग है कि आपने किसी भी मटेरियल को प्री रीड करना है, डीपली पढ़ने से पहले, उसको डिटेल से पढ़ने से पहले आप एक दफ़ा उसको जो है ना उससे गो थ्रू होंगे जस्ट टू गेट द मेन आइडियाज, राइट? दैट इज प्री रीडिंग। आपने कोई भी चैप्टर है, कोई आर्टिकल है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, वो आपने पढ़ना है बाद में, लेकिन आपने बाद में उसे डिटेल से पढ़ना है, डीपली अंडरस्टैंड करना है, इंटेंसिवली पढ़ना है, लेकिन उससे पहले you want to know that what on what subject or what is given in that particular text, so you want to just get the main ideas of that, so that is called pre-reading. तो ये जो है ना इसको प्री रीडिंग कहते हैं, जब आपकी प्लानिंग है कि आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट उस वक्त आप जो है ना उससे गो थ्रू हो रहे हैं, उसका एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे, एक ओवरऑल पिक्चर लेने के लिए उसके मेन आइडियाज जो है ना वो सिर्फ निकालेंगे, तो वो प्री रीडिंग कहलाती है। इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने नोट टेकिंग में बात की थी कि नोट टेकिंग में जब यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर अटेंडिंग द लेक्चर, राइट? तो आपको लेक्चर अटेंड करने से पहले खुद को जो है ना मेन टॉपिक से फेमिलियर करना होता है, सो दैट यू मे बी फेमिलियर विद द मेन टॉपिक and also with the related subtopics of that you can say that the topic or the subject which is going to be discussed in the lecture. So for that purpose, you will get the gist of that topic, or you will get the you will you can say that glimpse over the material which we related to that topic. So for that, you will just get the main ideas. You can say that. तो दैट इज प्री रीडिंग कि आप किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ना है, आपने नोट्स जैसे लेने हैं, तो टॉपिक तैयार करना है, तो उससे पहले जो है ना आप किसी भी कंटेंट या टॉपिक से सिर्फ गो थ्रू होंगे और मेन आइडियाज उसके निकालेंगे, उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब आप लेक्चर अटेंड कर चुके होंगे। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपरेशन जब आप करते हैं और मेन आइडियाज किसी भी कंटेंट या टॉपिक पे लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री रीडिंग. So I'm going to repeat again the different types which we are discussing of the skimming. First one is pre-reading, second one is skim reading, and third one is review skimming. ठीक है, ये तीन टाइप्स हैं। प्री रीडिंग हमने डिस्कस कर लिया है कि जैसे उसके नाम से ही पता चलता है कि आपने प्री रीड करना है चीज़ों को। एक तो एग्जांपल मैंने आपको दी कि आप जैसे कि नोट टेकिंग से पहले किसी भी टॉपिक कोई भी लेक्चर क्लास अटेंड करने से पहले किसी टॉपिक से गो थ्रू होते हैं, तो वो उसके लिए जब उस टॉपिक के मेन आइडियाज आप निकालते हैं, तो वो स्किमिंग है। ठीक है, वो आप स्किमिंग कर रहे हैं, वो आप प्री रीडिंग कर रहे हैं, वो आप प्री रीडिंग कर रहे हैं, यानी उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने से पहले, जो कि आपने बाद में इंटेंसिवली डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है, उसको आप जस्ट प्री रीड कर रहे हैं, उसके मेन आइडियाज निकाल रहे हैं। एक तो ये एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल कि आप जैसे कोई असाइनमेंट वगैरह आपको असाइन की गई है, तो आप उस टॉपिक पे सर्च करेंगे, और वो चाहे आप इंटरनेट पे सर्च करें या लाइब्रेरी में बुक्स पे सर्च करें, तो आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरी में अगर आप सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी बुक्स होंगी उस टॉपिक पे, या अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी PDF फाइल्स आपके सामने खुल जाती हैं।
तो सारी जो है ना सबको डिटेल्स उतनी आप पढ़ सकते हैं, और सारी ना ही आप प्रिसाइसली जो है ना वो रेलिवेंट है आपके टॉपिक से। तो आपने सबसे सिर्फ गो थ्रू होते हुए जो प्रिसाइसली जो मोस्ट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है आपके टॉपिक से, उसको आपने स्टडी कर दे। आप किस तरह से करेंगे ये, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं, या आपको उस डॉक्यूमेंट्स में से मटेरियल जो आप जो कुछ जो डिस्कशन या जो कंटेंट दिया हुआ है वो आपका रिक्वायर्ड भी है या नहीं। तो आप जस्ट जो है ना गो थ्रू होंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स को हल्का हल्का सा स्किम करेंगे, और जस्ट मेन आइडियाज उनके देखते जाएंगे, और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपके वर्थ रीडिंग है या नहीं, आपको आपको इनको पढ़ना चाहिए डिटेल से या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ वो डॉक्यूमेंट आप डिटेल से पढ़ेंगे या बाद में डिटेल से पढ़ने की प्लान करेंगे जो जिसमें जिसके मेन आइडियाज आपको लगता है कि हाँ दिस टॉपिक और दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिसाइसली रिलेटेड टू माय टॉपिक और माय नीड, राइट। जो आपको पता चले आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें मेरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इसको मैंने बाद में डिटेल से पढ़ना है, और इंटेंसिव रीडिंग के लिए या डिटेल रीडिंग के लिए इसको बाद में पढ़ना है। तो उसके आप मेन आइडियाज यानी सबके पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रेलिवेंट या कौन सा जो है ना वो आपकी रिक्वायर्ड है आपको। तो ये आप प्री रीड कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स की और उनमें से सर्च कर रहे हैं कि आपने कौन सा फाइंड आउट करना है, कौन सा आपके जो है ना वो ज़्यादा रेलिवेंट है आपके टॉपिक से। यस, प्री रीडिंग, स्किम रीडिंग एंड रिव्यू स्किमिंग, यस गुड। तो इसको यानी ये दूसरी एग्जांपल है कि जब आप असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स आपके पास बहुत सारे हैं और प्रीसाइज रेलेवेंट कंटेंट आपको चाहिए, तो बाकी कंटेंट को आप स्किम करेंगे, और स्किम करते हुए आप मेन आइडियाज लेते हैं। मेन आइडियाज से आपको आइडिया होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिसाइसली दैट इज रेलेवेंट टू योर need and your topic, right? So you will get that content to read that content later on deeply in detail, right? So that is pre-reading। एक एग्जांपल ये प्री रीडिंग की है कि आप उस कंटेंट को जो उन सारे डॉक्यूमेंट्स में एक कंटेंट आप निकाल लेंगे जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और जो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग है, जो मटेरियल आपको चाहिए वो उसमें है, तो आप उसको बाद में डिटेल से पढ़ने के लिए उस कंटेंट को निकाल लेंगे, और उससे पहले आपको सबके मेन आइडियाज निकालने पड़ेंगे। ठीक है, मेन आइडियाज पढ़ने ही पड़ेंगे, फिर ही आपको पता चलेगा ना। तो ये जो है ना यानी आप प्री रीड कर रहे हैं, और रीडिंग डिटेल में रीडिंग करने से पहले उस डॉक्यूमेंट को जो है ना स्किम कर रहे हैं, तो वो आपकी प्री रीडिंग है, राइट। दैट इज प्री रीडिंग ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। ओके जी, सेकंड टाइप की तरफ आ जाते हैं कि सेकंड टाइप ये तो प्री रीडिंग हो गई कि हमने कहाँ करनी है, और स्कीमिंग बेसिकली तो स्कीमिंग ही है ना, स्कीमिंग की टाइप्स हैं कि हमने मेन आइडियाज निकालने हैं। तो लेकिन ये है कि इनका पर्पस क्या क्या है, हम या हम कहाँ कहाँ पे प्री रीडिंग करते हैं, कहाँ स्किम रीडिंग करते हैं, और कहाँ रिव्यू स्किमिंग करते हैं। ठीक है, तो प्री रीडिंग की आपको मैंने दो एग्जांपल दे दी कि हम यहाँ पे यानी जब आप डिटेल से कोई कंटेंट बाद में पढ़ेंगे और उससे पहले आप सिर्फ मेन आइडियाज उसके लेते हैं, तो उसको प्री रीडिंग कहते हैं। इसी तरह से स्किम रीडिंग कहाँ करते हैं, यानी कि आप कह लें कि इंटेंसिव रीडिंग की एक काइंड है। ठीक है, तो दूसरी टाइप है कि स्किम रीडिंग। स्किम रीडिंग हम कहाँ करते हैं और क्यों करनी चाहिए। स्किम रीडिंग फॉर एग्जांपल जब आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, जब हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या हम कोई मैगजीन या कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, या वैसे कोई नॉवल या कोई बुक पढ़ते हैं जस्ट फन रीडिंग के लिए, एक्सटेंसिव रीडिंग उसे कहते हैं। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग जो है ना दो मेन काइंड्स हैं, और उनकी फर्दर ये स्कीमिंग और स्कैनिंग भी उनकी फर्दर सब काइंड्स हैं, आप कह लें सब कैटेगरीज हैं। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग होती है द रीडिंग विच यू डू फॉर अ कंटेंट with deep understanding in detail, right? That is called intensive reading। और extensive reading होती है जो हम fun reading जैसे जो हम थोड़ा बहुत यानी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं करते, लेकिन सुपरफिशियल चीज़ों को रीड आउट करते हैं और बस फन के लिए पढ़ते हैं, जैसे या हैबिचुअल
रीडिंग हैबिट होने की वजह से हम पढ़ते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल, कोई मैगजीन, कोई डाइजेस्ट, कोई भी कोई नॉवल वगैरह। तो उनको हम डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं, हम फन रीडिंग के लिए, अपना जो है टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं। तो दैट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, या अपनी रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए, या अपना कह लें कि नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए, यानी लेकिन डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं पढ़ते। जैसे हम अपने कोर्स के कंटेंट्स को पढ़ते हैं, कोर्स के मटेरियल को पढ़ते हैं। कोर्स के मटेरियल की रीडिंग जो है ना वो इंटेंसिव रीडिंग में आती है। ओके, तो जैसे हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उसको हम स्किम रीड करते हैं, बिकॉज आवर पर्पस इज नॉट टू रीड दैट मटेरियल लेटर ऑन आफ्टर रीडिंग दैट, राइट। कि हमारा इसमें कोई पर्पस नहीं है कि हमने वो पहले से हम पढ़ चुके हैं मटेरियल, और ना ही हमने बाद में उसको डिटेल से पढ़ना है उस मटेरियल को। वो हम जस्ट वैसे ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हम जस्ट हेडलाइंस देखते हैं, और अगर कोई न्यूज़ हमें वर्थ रीडिंग लगती है तो हम उसको बाद में डिटेल से भी पढ़ लेते हैं। लेकिन पहले जो है हम सब सिर्फ हेडलाइंस देखते हैं, और इसी तरह कोई आर्टिकल या कोई मैगजीन में भी कोई आर्टिकल देख रहे होते हैं तो उसमें भी उसको भी डिटेल से नहीं पढ़ते, जस्ट उसके मेन पॉइंट्स पढ़ते जाते हैं। और हमारा पर्पस जो है उनको बाद में पढ़ने का नहीं होता। ठीक है, बाद में हमने उसको नहीं पढ़ना, या डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ या डिटेल में हमने उनके नहीं जाना। कोई न्यूज़ जैसे पढ़ने की काबिल लगती है तो हम उसको डिटेल में बाद में पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी बाद में नहीं है, न्यूज़ वक्त। यस नबील, आपने हाथ जो है ना, यू हैव रेज्ड योर हैंड। नहीं, स्कैनिंग में आपको डिटेल से नहीं है। जैसे आपको एक वर्ड की इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं तो उसमें आप डिटेल से, यानी उस वर्ड को तो डिटेल से पढ़ेंगे जब आप उसको उस वर्ड तक पहुंच गए हैं। जैसे हम डिक्शनरी में कोई वर्ड तलाश कर रहे हैं तो उस वर्ड के जब हम उस वर्ड पे डायरेक्ट पहुंच गए उसको तो डिटेल से डेफिनेटली पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना बाकी चीजें या बाकी वर्ड्स को हमने नहीं पढ़ना। Means to say you have to skip all other information which is given in the dictionary। जो भी बाकी वर्ड्स या बाकी डिटेल्स वगैरह दी गई हैं आपने उनको नहीं देखने की तरफ जाना। अगर आप वो देखने जाएंगे तो आप जो है ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कि हम एक वर्ड देखने बैठे थे तो कोई दूसरा तीसरा देखने बैठ गए, कोई चौथा देखने बैठ गए। दैट विल बी वेस्टेज ऑफ योर टाइम, राइट। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। You have to just get to that particular word, and you will definitely read that particular word which is required to you in detail। लेकिन बाकी जो है ना डिटेल्स हमने नहीं पढ़नी। इसी तरह से अगर कोई टेक्स्ट भी है उसको हम स्कैन कर रहे हैं तो वो भी जब है ना, वो जैसे कोई हिस्ट्री टेक्स्ट की एग्जांपल दी थी मैंने आपको। हिस्ट्री टेक्स्ट में आप कोई एक पर्टिकुलर डेट पे इवेंट आपने देखना है तो वो आप बाकी सारे जो उसमें कंटेंट है वो स्किप कर देंगे, और हेडिंग्स या सब हेडिंग्स के थ्रू होते हुए आप डायरेक्ट उस पैसेज तक, रिक्वायर्ड पैसेज तक पहुंचेंगे जहाँ के आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी, या वो इवेंट पड़ा होगा जो आपको रिक्वायर्ड था, या वो डेट जो इवेंट, जो कोई पर्टिकुलर इवेंट उस डेट पे हुआ। ठीक है, तो वो स्कैनिंग है, यानी आपने पढ़ना नहीं है, लेकिन जब आपने उस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाना है फिर आपने उसको तो डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन बाकी चीजों को नहीं। क्लियर? ओके। ओके जी, वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्किम रीडिंग। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि अब जिस तरह न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल, कोई मैगजीन पढ़ते हैं जो हम बाद में नहीं पढ़ते, जो हमें वी हैव नॉट एनी प्लानिंग टू रीड दैट कंटेंट afterwards, right, in detail or with deep understanding, and we are just reading that for the fun, right, or for the time passing purpose, right, then you can say then you are doing the skim reading। फिर आप skim reading कर रहे हैं because you are getting just the main ideas or main points of that content। आप उसको एक नज़र पर जो है ना उसमें से मेन चीज़ें देखते जा रहे हैं और बाकी सब कुछ स्किप करते जा रहे हैं। जैसे हेडलाइंस की एग्जांपल दी मैंने, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस देखते जाते हैं, और अगर कोई आपको लगती है कि हाँ ठीक है इसे मैंने डिटेल से पढ़ना है तो उस न्यूज़ को आप डिटेल से भी पढ़ लेते हैं, और बाकी सिर्फ हेडलाइंस देखते हैं, और आपने बाद में उनको डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं पढ़ना होता। इसी तरह नॉवल भी है, इसी तरह कोई और भी बुक है, मैगजीन है, मैगजीन में कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो ये एग्जाम्पल है उनकी स्किम रीडिंग की। ठीक है, प्री रीडिंग जो आपने बाद में भी पढ़नी है, और स्किम रीडिंग जो आपने बाद में नहीं पढ़नी है डिटेल से। और रिव्यू स्किमिंग क्या है? रिव्यू, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रिव्यू स्किमिंग, व्हेन यू already have read some particular material, some particular content,
some written text, and you want to just get now the main ideas which you have already read, right, which you have already studied, and you want to just review the main ideas of that content, that what were given in that topic. So that is review skimming. ठीक है, इसके एग्जांपल हम जैसे कि ये ले सकते हैं कि जैसे एग्जाम की तैयारी में हम जो है ना जो हमारे नोट्स हैं या जो भी रीडिंग रीडिंग मटेरियल है हमारे कोर्स से रेलेवेंट, हम उसको डिटेल से पढ़ चुके हैं, हमने उसकी प्रिपेयर कर लिया है, उसकी प्रिपरेशन कर ली है, और हम जो है ना अब उस मटेरियल में से, उस कंटेंट में से जस्ट मेन आइडियाज़ को रिव्यू करना चाह रहे हैं, रिकॉल करना चाह रहे हैं कि अच्छा इस टॉपिक में ये मेन पॉइंट्स या मेन आइडियाज़ दिए गए थे। तो हम उसको रिव्यू जब करते हैं किसी भी पढ़े हुए, पहले से पढ़े हुए कंटेंट को, तो जब और उसके मेन आइडियाज निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिव्यू स्कीमिंग, राइट, उसे रिव्यू स्कीमिंग कहते हैं। उसकी और भी बहुत एग्जांपल हो सकती हैं कि आपने जो है ना कोई कोर्स के रिलेटेड टॉपिक है या कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आप पहले से पढ़ चुके हैं डिटेल में, उसको डीपली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, डिटेल से पढ़ चुके हैं, और आप अब जो है ना उसमें से देखेंगे कि रिव्यू करने के लिए कि इसमें कौन कौन से मेन आइडियाज़ दिए गए थे, उसको रिव्यू करेंगे और मेन आइडियाज़ को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो है ना वो उसे रिव्यू स्कीमिंग कहते हैं, right? So these were the three different purposes of doing skimming, and you can say that where we should do what type of skimming. ये इससे हमें पता चलता है कि हमने कहाँ पे किस किस्म की स्किमिंग करनी है। हम प्री रीडिंग कर रहे हैं, हम ये तीनों टाइप्स हैं तो स्किमिंग की, लेकिन कौन सी कहाँ करनी है या कर रहे हैं वो हमें बाद में पता चलता है। ये टाइप्स उसको शो करती हैं कि प्री रीडिंग हम कहाँ पे करते हैं, स्किम रीडिंग हम कहाँ करते हैं, ये करनी चाहिए, और रिव्यू स्किमिंग हमें कहाँ करनी चाहिए। ठीक है, बुक का नाम आप लोगों को बताया था, लेकिन वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मैं फिर से आपको बता देती हूँ, कॉलेज रीडिंग एंड स्टडी स्किल्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, वो मैं आपको उसकी स्नैप्स लेके उसको पीडीएफ फाइल में आपको सेंड कर दी जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी। उसका नाम है कॉलेज रीडिंग एंड स्टडी स्किल्स बाय कैथलीन टी मिक वाटर। परचेज भी नहीं की जा सकती क्योंकि वो यहाँ पे बुक शॉप्स पे अवेलेबल नहीं है। वो पायरेटेड बुक वर्जन हमारे पास पड़ा हुआ है, वो उसकी ये आप कर सकते हैं कि फहद जो है ना वो मुझसे उस चैप्टर की जो है ना वो फोटोकॉपी ले जाएं और किसी तरह फिर आपको पहुंचा दें, ये हो सकता है। मिड के लिए उसमें से 2 चैप्टर, या शायद अगर टाइम हुआ तो हम 3 भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम 2 ही चैप्टर इसमें से डिस्कस करेंगे और बाकी कंटेंट्स हम देंगे। अगर टाइम हुआ तो फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ भी हम उसमें से ले सकते हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि टाइम हमारे पास शॉर्ट है और हमारे और भी कंटेंट्स कवर करने हैं, तो मुश्किल है। ले लिए फाद ने, चलें अच्छी बात है, अगर ले लिए, अगर वही उनके पास वही चैप्टर्स हैं तो देन वेरी वेल एंड गुड। ओके जी, इस सेशन में भी हमारे पास टाइम 10 मिनट रह गए, हम जल्दी से अब स्कीमिंग वर्सेस स्कैनिंग टाइप्स हमारी हो गई। पर्पस ऑफ डूइंग स्कीमिंग हमने डिस्कस कर लिया, आप स्कीमिंग और स्कैनिंग का डिफरेंसेस डिस्कस कर लें। उसके बाद जो है इनका प्रोसेस, दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, वो रह जाएगा, वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जल्दी से 15-20 मिनट में करते हैं। ओके, स्कीमिंग वर्सेस स्कैनिंग क्या है? स्कीमिंग है जी फास्ट रीडिंग टेक्निक। ओके जी, वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। ओके, skimming versus scanning. Skimming is fast reading, right? While on the other hand, scanning is actually, we can't say that that is reading. That is just glimpsing over the content, glimpsing over the word. हम ये कह सकते हैं कि skimming जो है वो बहुत scanning is more speed reading technique than skimming. ठीक है, तो स्कैनिंग में हमें और भी तेजी से पढ़ना पड़ता है या आप कह लें कि चीज़ों को नज़रों से गुजारना पड़ता है, वर्ड्स को और कंटेंट को। जब स्कैनिंग करते हुए हम नज़रों से गुजार रहे होते हैं कंटेंट को, स्कीमिंग में हम फिर कुछ रीड कर रहे होते हैं, लेकिन तेज़ी से रीड आउट कर रहे होते हैं ताकि हम मेन आइडियाज़ निकाल सकें, और उसमें भी हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या स्किम करना है, क्या क्या स्किप करना है, वो हम जब उसका प्रोसेस या मेथड पढ़ेंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके,
स्किमिंग इज फास्ट रीडिंग, गेटिंग द मेन आइडिया नॉट ऑल डिटेल्स। हमने जस्ट मेन आइडियाज उसमें से लेने होते हैं, डिटेल्स की तरफ नहीं जाना, फैक्ट्स और बाकी एग्जांपल्स वगैरह जो दिए हैं उनको नहीं देखना। मस्ट लीव आउट पार्ट्स, हमने हमने ज्यादा पार्ट्स जो हैं वो छोड़ने होते हैं। वी हैव टू लीव द लार्ज पार्ट ऑफ द कंटेंट व्हाइल डूइंग स्किमिंग, राइट? ओनली देन वी विल बी एबल टू skim the content or the long articles or chapters. और जो है ना, मोर ओवर वे मे लीव आउट हाफ टू थर्ड फोर्थ ऑफ द पैराग्राफ वंस यू हैव द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। तो आपको जब आप स्किमिंग कर रहे हैं तो आपने मेन आइडियाज निकालने हैं। तो मेन आइडियाज, तो मोस्टली इट हैपेंस दैट इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ द मेन आइडिया इज गिवन। तो जब आपको मेन आइडिया एक पैराग्राफ में से मिल गया है, मोस्टली ये होता है कि फर्स्ट सेंटेंस में जो है ना, फर्स्ट सेंटेंस जो है ना उसमें मेन आइडिया किसी भी पैराग्राफ का दिया गया होता है। जब आपको मेन आइडिया उसमें से मिल गया है तो आपने बाकी सारी डिटेल्स उस पैराग्राफ की स्किप कर देनी है। आपको बाकी हाफ ऑफ द पैराग्राफ या वन, यू कैन से दैट you will leave the third fourth of the paragraph, बाकी पैराग्राफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर जो है ना वो फर्स्ट सेंटेंस में मेन आइडिया नहीं दिया तो इट हैपेंस दैट इट इज गिवन इन द मिड ऑफ द paragraphs, or if it is not in mid then it will be in the final or in the end, sorry, in the end of the paragraph। तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेना पड़ेगा पैराग्राफ पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपको मेन आइडिया फर्स्ट पैराग्राफ में मिल गया है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है उसको बाकी पैराग्राफ को डिटेल से पढ़ने की, राइट? Moreover, comprehension is lower. Try to comprehend as much as you can while reading at an average speed. Definitely, when you are reading while doing skimming, you are reading speedily, so your comprehension level becomes low. ठीक है, जब आप तेजी से किसी कंटेंट को पढ़ रहे हैं तो आपकी comprehension उस हिसाब से नहीं हो रही होती, आपकी comprehension low होती है। तो आपने जो है ना कोशिश करनी है कि जो है ना कम्प्रीहेंशन हो सके। जितनी कि आप एवरेज स्पीड पे आपकी कम्प्रीहेंशन होती है उतनी स्किमिंग करते हुए नहीं होती। सो योर कम्प्रीहेंशन लेवल इज अराउंड अबाउट 50% ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग। सो ट्वाइस एज फास्ट स्किमिंग जो है वो एवरेज स्पीड से 2 गुना तेज रीडिंग होती है, राइट? जब हम जो एवरेज स्पीड पे हम रीडिंग कर रहे होते हैं, so while doing skimming, that is, you can say that twice fast. Really done with material you know nothing about. We have already discussed that we do skimming of the material which to which we are totally new, which we are quite new, and we are unknown, or we are, you can say that, not familiar with the content, right? हम उस कंटेंट से हमें फेमिलियर नहीं है, हमें नहीं पता, हम पहले से हम उस कंटेंट को नहीं पढ़ा हुआ और बिल्कुल न्यू कंटेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें से मेन आइडियाज निकालते हैं। जबकि स्कैनिंग में ये होता है कि ऑफन डन विद मटेरियल दैट यू नो समथिंग अबाउट। जबकि स्कैनिंग में वी डू स्कैनिंग ऑफ द मटेरियल अबाउट विच वी ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट। we have some question and we have to get the answer of that, or we have some particular point or something about which we are going to search in our already, it can be in our already read content, right? वो हो सकता है कि हम पहले से पढ़े हुए कंटेंट में सर्च कर रहे हैं, यानी हम पहले से उस मटेरियल से फेमिलियर होते हैं जिसमें हम स्कैनिंग कर रहे होते हैं। जैसे हम डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढ रहे हैं तो हमें पता है डिक्शनरी की क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो हम पहले से फेमिलियर होते हैं। जबकि जब स्कीमिंग कर रहे होते हैं तो कम्प्लीटली अननोन मटेरियल को स्कैम कर रहे होते हैं। ओके जी, स्कैनिंग की तरफ आ जाए कि रीडिंग टेक्निक used when you want to locate a single fact or specific bit of information without reading every word. So skimming is actually fast reading, while on the other hand, scanning is reading technique when you used when you want to locate a single fact or specific bit of information. So that is just, that is, you can you should not say that that is reading, but we should say that that is glimpsing over the content. We don't need to read, we are not going to read every word, right, of the content.
इसकी एग्जांपल है कि जैसे आप टीवी प्रोग्राम्स के लिए स्कैनिंग की तरफ हम पढ़ रहे थे, स्कैनिंग के बारे में कि जैसे इसकी एग्जांपल है, जैसे स्कैन टीवी लिस्टिंग्स इन पेपर टू फाइंड टाइम टू शो। जैसे टीवी लिस्टिंग्स हमने आपने आप स्कैनिंग की एक एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे आपके पास कोई टीवी प्रोग्राम्स की लिस्ट है, आपने देखना है कि कौन सा टीवी शो जो है ना वो किस टाइम पे होता है, तो उसमें से आप टीवी जो भी प्रोग्राम है उसका नेम आपके माइंड में होगा। यू हैव टू कीप इन माइंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टीवी शो, राइट, and you will search for the time of that TV show, right? We used to say while doing while doing scanning, we have to keep in mind, we have to anticipate the things, we have to guess the things, anticipate करना पड़ता है कि in what form our required information may lie, right? हमारी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में होगी। फॉर एग्जांपल कोई टीवी शो का टाइम हमने देखना है किसी भी लिस्ट में, तो उस टीवी शो का नाम एक तो पहले हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि इसको मैंने सर्च करना है। ये ना हो कि बाकी सारे टीवी शोज की जो है ना वो टाइम देखने लग जाऊं और डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं और इस तरह से टाइम वेस्ट हो। ये नहीं करना। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बल्कि अपने माइंड में उसके नाम को रखना है, उस टीवी शो के नाम को रखना है, सो दैट आई जस्ट गेट टू दैट पर्टिकुलर शो एंड द टाइम ऑफ दैट, राइट। तो इसलिए हमने एंटिसिपेट भी करना है और पहले से माइंड में रखना है कि मैंने ढूंढना क्या है, फॉर व्हाट आई एम सर्चिंग, राइट, फॉर व्हाट इंफॉर्मेशन आई एम सर्चिंग, एंड in what form my required information may lie। एक तो ये कि हम एक तो ये चीज माइंड में रखनी है कि कौन सी मेरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, किस चीज के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और दूसरी ये कि मेरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं एक आपको दूँ कि जैसे दो सिटीज के डिस्टेंस हम ढूंढ रहे हैं कि दो सिटीज के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वो किस फॉर्म में होगी। यानी डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली वो किलोमीटर्स की फॉर्म में होगी या माइल्स की फॉर्म में होगी, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी, और जो है ना उसमें भी न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हमें किलोमीटर्स में मिलेगी या माइल्स में मिलेगी। ठीक है, तो ये हमें एंटिसिपेट करना है, एक तो माइंड में रखना है कि हम किस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, दूसरा कि हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है, ये स्कैन करते हुए हमने माइंड में रखना है, जो कि स्कीमिंग में नहीं होता। स्कीमिंग में तो हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं जो हमें पहले से पता ही नहीं है। इसी तरह फोन डायरेक्टरी की एग्जांपल है कि जब आप फोन डायरेक्टरी में आपके पास किसी शख्स का नाम है, यू हैव द नेम ऑफ अ पर्सन फॉर विच यू आर गोइंग टू स्कैन द एड्रेस ऑफ दैट पर्सन इन द डायरेक्टरी, and you know the organization of the directory that you have to search with the last name of the person and in alphabetical order। आपको पता है कि जब आपने किसी डायरेक्टरी में किसी शख्स का नाम या एड्रेस वगैरह ढूंढना है, फोन नंबर वगैरह, तो वो किस फॉर्म में दिया होगा। डेफिनेटली वो न्यूमेरिकल, अगर फोन नंबर है तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, और अगर एड्रेस है तो वो किस तरह से दिया होता है, ठीक है, स्ट्रीट नंबर वगैरह, हाउस नंबर वगैरह, इस तरह से। और उसकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप ढूंढ रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपने सर्च करते हुए जो है ना अपने डायरेक्ट बाकी सारे कंटेंट को, बाकी सारे एड्रेसेस या फोन नंबर्स को स्किप करते हुए डायरेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हुए सर्च करते हुए आपने डायरेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन तक उस डायरेक्टरी में जाना है, राइट। So that is fast way to find information. So scanning is a fast way to find some particular information and must be accurate in terms of finding a specific TV show or phone number। और जो है ना आपको पता होना चाहिए कि जब आप सर्च कर रहे हैं, when you have finished your scanning, then you must know that your finding or your research इज एक्यूरेट, यानी जो चीज आप ढूंढना चाह रहे थे एक्यूरेटली वो चीज आपको मिल भी गई है, वो इन्फॉर्मेशन, यानी वो करेक्ट है, यानी जो टीवी शो के टाइम आप देख रहे थे वही है, फोन नंबर जो आप ढूंढ रहे थे वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही आपको मिली है, गलत तो नहीं है, ठीक है। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। ओके जी, ऑफन डन विद मटेरियल दैट यू नो समथिंग अबाउट, ये हमने पहले पॉइंट देख लिया था
कि स्कैनिंग स्किमिंग हम उस मटेरियल की करते हैं जो हमें पहले से जिससे हम फेमिलियर नहीं है, और स्कैनिंग जिसके बारे में जिस मटेरियल से हम पहले से थोड़ा सा फेमिलियर हैं। एग्जांपल इसकी दी थी टेलीफोन डायरेक्टरी की, यू ऑलरेडी नो द नेम ऑफ द पर्सन, व्हाट एल्स डू यू नो, इसके इसके अलावा और क्या आपको इसके बारे में पता है। ठीक है, ओके जी, ये हमने डिफरेंसेस, हमने अब तक जो है ना डेफिनेशंस डिस्कस कर ली, एग्जांपल्स उसकी डिस्कस कर ली, और फिर उसके बाद हमने स्किमिंग स्कैनिंग की, और उसके बाद हमने स्किमिंग की टाइप्स डिस्कस की, टाइप्स या पर्पसेस भी आप उसे कह सकते हैं, और moreover we have discussed the differences between skimming and scanning. Now we are going to speedily discuss the method of skimming and scanning. जल्दी से हम skimming और scanning का method देखेंगे कि दोनों का मेथड क्या है, दोनों का किस किस प्रोसेस से होते हुए हम स्किमिंग करते हैं और किस प्रोसेस से होते हुए हम स्कैनिंग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम स्किमिंग करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि हम यानी किस तरह से करनी है प्रॉपरली, और किस तरह से चीज़ों को स्किप करना है पढ़ते हुए, यानी कौन सी अननेसेसरी डिटेल्स जो है वो हमने उसको स्किप करना है, और जस्ट हमने मेन आइडियाज लेने हैं ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो स्किमिंग करते हुए या स्कैनिंग करते हुए। ओके जी, जल्दी से स्किमिंग देखें। फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग स्किमिंग, दैट वी हैव टू रीड द टाइटल ऑफ अ बुक और अ चैप्टर विच वी आर गोइंग टू रीड। कोई भी चैप्टर या बुक जो है जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका टाइटल देखना है, एंड थ्रू टाइटल we will be able to get the subject of the टॉपिक, राइट। हमें पता चल जाएगा कि इसमें किस सब्जेक्ट पे बात हुई है। जब हम टाइटल पढ़ लेते हैं तो हम इस काबिल हो जाते हैं, वी बिकम एबल टू असेस और टू गेस द सब्जेक्ट ऑफ द टॉपिक, राइट, कि किस सब्जेक्ट में इस टॉपिक में किस सब्जेक्ट पे बात हुई है, इस आर्टिकल में इस कंटेंट में किस सब्जेक्ट पे बात हुई है। ठीक है, तो वो हम उससे गैस कर लेते हैं। उसके अलावा हमें ऑथर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हमें टाइटल से मिल जाती है, ऑथर का स्टाइल, उसका व्यू पॉइंट और पब्लिकेशन डेट और सोर्स वगैरह, राइट। ये हम टाइटल से सारी चीजें पढ़ेंगे। लीव नथिंग आउट बट रीड एट योर टॉप स्पीड। तेजी से हमने पढ़ते हुए टाइटल पढ़ते हुए कोई चीज नहीं छोड़नी, यानी स्पीडीली हमने ये सारी चीजें पढ़नी है। टाइटल में ये सारी चीजें पढ़नी है हमने। आर्टिकल जो है ना उसका ऑथर का व्यू पॉइंट और स्टाइल उसका गैस करना है, और उसके साथ साथ पब्लिकेशन डेट और सोर्स वगैरह। ओके, ऑथर्स यूजुअली गिव एन इंट्रो इन द फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स, दिस हेल्प्स get an overall picture of the article. So we all know that that in any article the introductory paragraph is given, right? So introductory paragraph, or if introductory paragraph is too much long, then the first paragraph or that of that introduction, right, uh, tells us about the, you can say that overall, that or gives us an overall picture of the whole article. हमें पता है कि जब हम ऑथर यानी ये सारी डिटेल्स हमने ऑथर के बारे में पढ़ ली, और हमें टाइटल से ये सारी डिटेल्स जो है ना ऑथर टाइटल के बारे में हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है कि उसमें क्या डिस्कस हुआ है। उसके बाद ऑथर की डिटेल कि ऑथर क्या है, कैसा है, उसका व्यू पॉइंट क्या है, पब्लिकेशन डेट वगैरह, उसके सोर्स वगैरह हमें टाइटल से पता चल जाता है। इसलिए हमें उसे स्पीडली कंप्लीटली पढ़ना है और उसमें से टाइटल में से कुछ नहीं छोड़ना। बाकी जो है ना बाकी जब हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो अगर इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट करें। अगर बहुत लंबा है इंट्रोडक्शन, 3 4 5 6 पैराग्राफ पे है, तो आप जस्ट पहला पैराग्राफ जो है ना उस इंट्रोडक्टरी पैसेज का आप पढ़ लें, और उसी से, क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ना कम्प्लीटली इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट गिव्स अस द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द आर्टिकल। हमें पूरे आर्टिकल में जो भी डिस्कस हुई हैं चीज़ें, जो भी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या फर्स्ट पैराग्राफ से हमें पता चल जाती है, इसलिए उसे कंप्लीट पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रीड द इंट्रोडक्शन। ये हमने तकरीबन डिस्कस कर लिया ये पॉइंट। इफ इट इज़ वेरी लॉन्ग, रीड ओनली द फर्स्ट पैराग्राफ कम्प्लीटली, राइट। तो अगर इंट्रोडक्शन बहुत लेंथी है तो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लें। रीड ओनली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ read only the first sentence of each paragraph. So usually this sentence will be a statement of the main idea of that paragraph. So we have already, during discussing the differences of skimming and scanning, we have already discussed that mostly
the main idea is given in the first sentence of the of each paragraph, right? So after reading the introductory paragraph or the first paragraph of the article, we have to read what we have to do. We have to read the first sentence of each paragraph. हमने अब नेक्स्ट एक पैराग्राफ, हमने पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ लिया है. सेकंड स्टेप ये है कि हमने जो है ना हर पैराग्राफ जो भी सब पैराग्राफ्स हैं उनके हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ लेना है, क्योंकि हर पैराग्राफ का जो मेन आइडिया होता है वो फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया होता है और हमें उससे पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिस्कस हुआ इस पैराग्राफ में. बाकी जो है ना वो डिटेल्स होती हैं, ठीक है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेंटेंस में आपको मेन आइडिया नहीं मिलता, तो फिर जो है ना आपको मिडल में या आपको लास्ट में वो आइडिया मिलेगा और थोड़ा सा आपको इसका मतलब है कि ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. बट मोस्टली इट हैपन्स दैट the main idea is given in the first sentence, right? Thirdly, read any headings and subheadings. The headings form an outline or the main topics covered in the material. अब आपने टाइटल पढ़ लिया, टाइटल के बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया, फिर आपने हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लिया, उसमें से आपको मेन आइडिया मिल गया. थर्ड नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट आपने जो भी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दी गई हैं आपने उनको पढ़ लेना है, because these headings and subheadings also provide you the main ideas of the article or the chapter or the content. ये headings और subheadings भी आपको main ideas provide करती हैं उस आर्टिकल की, ठीक है. नेक्स्ट है, यू विल नॉट गेट ऑल द फैक्ट्स बट यू मे गेट सम, यानी आपको तमाम फैक्ट्स तो नहीं पता चलेंगे लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं उन मेन आइडिया से क्लियर हो जाएंगे कि इसमें इस टॉपिक में इस आर्टिकल में क्या चीज दी गई है, तो जो है ना उससे क्लियर हो जाएगा. समटाइम्स द मेन आइडिया इज नॉट इन द फर्स्ट सेंटेंस, द थिंग विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, राइट? कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जो है ना मेन आइडियाज पहले सेंटेंस में नहीं होते, तो समटाइम्स इट इज इन द मिडल or the end of the paragraph. This may take extra time to find, right? Okay, some paragraphs may not have a main idea, ठीक है. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई आर्टिकल आपके पास है या कोई पैराग्राफ है तो उसमें मेन आइडिया सिरे से दिया ही ना गया हो, क्योंकि जैसे स्टोरी टाइप कोई चीज है, कोई स्टोरी टाइप आर्टिकल है, तो उसमें स्टोरी की फॉर्म में जो भी है वो मैसेज, जो भी मैसेज राइटर कन्वे करना चाह रहा है वो स्टोरी की फॉर्म में रिलेट करता है उसको, ठीक है, और स्टोरी की फॉर्म में वो आपको मैसेज कन्वे करता है. और तो उसमें मेन आइडिया डायरेक्टली नहीं दिया गया होता, लेकिन वो मेन आइडिया आपने खुद से उस स्टोरी से डिराइव करना होता है कि क्या मेन आइडिया इसमें दिया गया है, या क्या मैसेज जो है वो राइटर कन्वे करना चाह रहा है, राइट? So the final paragraphs often summarize the story or article, so they may be worthwhile to read more fully. इसी तरह से जो आखिरी पैराग्राफ होता है वो कंक्लूसिव पैराग्राफ होता है किसी भी आर्टिकल का, किसी भी चैप्टर का. वो पूरे जो भी ऊपर डिस्कशन हुई होती है पूरे आर्टिकल में उसको समराइज कर रहा होता है, तो इसीलिए लास्ट पैराग्राफ जो है ना वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है और वो कंप्लीट पढ़ना चाहिए. एक फर्स्ट पैराग्राफ और एक लास्ट पैराग्राफ, ये दोनों पैराग्राफ जो है कंप्लीटली पढ़ने चाहिए ताकि जो है ना आपको मेन आइडियाज जो है ना, तो फर्स्ट पैराग्राफ में भी सारे मेन आइडियाज डिस्कस किए गए होते हैं, ओवरऑल जो है ना वो पिक्चर एक मिल जाती है आपको आर्टिकल की, और लास्ट पैराग्राफ में भी फिर से आप रिव्यू करने के काबिल होते हैं कि कौन से मेन आइडिया देखो क्या किन टॉपिक्स पे डिस्कशन हुई थी. ओके जी, मोर ओवर हाउ यू कैन गेट द मेन आइडियाज, आप किस तरह से मेन आइडियाज को आपको पता चल सकता है कि यहाँ यहाँ मेन आइडियाज दिए गए हो सकते हैं, वो आपको किन चीजों से आप असेस कर सकते हैं. वो ये पॉइंट्स हैं कि नोटिस एनी पिक्चर्स, चार्ट्स और ग्राफ्स इंक्लूडेड. अगर कोई पिक्चर वगैरह, कोई डायग्राम, कोई ग्राफ्स, कोई चार्ट्स वगैरह, कोई कैप्शंस होती हैं जो पिक्चर्स के नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है ना पिक्चर्स की, पिक्चर्स के बारे में, उसको कैप्शन कहते हैं. तो उन कैप्शन से, चार्ट से, ग्राफ से, डायग्राम से आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कोई मेन आइडिया, मेन पॉइंट आपको मिल सकता है, ठीक है. दे आर ऑफन इंक्लूडेड टू एम्फसाइज द मेन आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और ट्रेंड्स. सो ये भी जो है ना, ये चीजें भी सारी पिक्चर्स और चार्ट्स, ग्राफ, डायग्राम्स वगैरह, कैप्शन वगैरह भी किसी कंटेंट में इसीलिए ऐड की जाती हैं ताकि मेन आइडियाज को एम्फसाइज किया जा सके, कॉन्सेप्ट्स को एम्फसाइज किया जा सके. Okay, moreover, you have to notice any italicized or bold faced words or phrases. So, moreover, through it is italicized words,
या कोई बोल्ड फेस में वर्ड्स या फ्रेजेस दिए गए हैं तो उससे भी आप गैस कर सकते हैं क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इससे भी गैस किया जा सकता है। ओके, फाइनली रीड द समरी और लास्ट पैराग्राफ। लास्ट स्कीमिंग का स्टेप है कि आपने इन सारी चीजों को नोट करने के बाद जो समरी या कंक्लूसिव पैराग्राफ है, फाइनल पैराग्राफ है उस चैप्टर का या आर्टिकल का, वो भी आपने कंप्लीट पढ़ना है ताकि एक दफा सारे डिस्कशन जो है या सारे मेन पॉइंट्स जो भी डिस्कस, मेन आइडियाज डिस्कस हुए हैं ऊपर इन द होल आर्टिकल, वो आप रिव्यू कर सकें, राइट। So that was the process or the method of doing skimming. Now we will just go through the points of doing scanning कि क्या टिप्स हैं, स्कैनिंग किस तरह से करनी है वो आप जल्दी से देख लें। कुछ तो हमने स्टेप्स जो है ना वो साथ साथ हम करते भी आए हैं, टाइप्स पढ़ते हुए और डिफरेंसेस देखते हुए हमने बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए हैं, उन्हीं को दोबारा आप कह लें कि डिटेल से हमने देखना है। जल्दी से देखते हैं इन्हें, फिर इसके बाद आप 5 मिनट जस्ट लगेंगे और आप फ्री हैं इंशाल्लाह। नोट द अरेंजमेंट और इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग करते हुए आपने जो है ना वो अरेंजमेंट देखनी है। पहला स्टेप तो ये है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने यू हैव टू कीप इन माइंड दैट फॉर व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। पहले तो आपने ये जहन में रखना है कि आप कौन सी क्या इंफॉर्मेशन या क्या किस चीज को आप सर्च आउट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपने दूसरा स्टेप जो है स्कैनिंग करने का, वो आपने ये देखना है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में होगी। आपने एंटिसिपेट करना है कि मेरी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में होगी। उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी कि जैसे आपने दो सिटीज के दरमियान डिस्टेंस को सर्च आउट करना है तो आपको पता होना चाहिए, आपको आप गेस कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वो माइल्स की फॉर्म में, एक तो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, दूसरा वो माइल्स या किलोमीटर्स में होगा, राइट। तो इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप ढूंढ रहे हैं उसको आपने माइंड में रखना है। एक तो रखना है कि क्या ढूंढ रहे हैं, दूसरा कि वो किस फॉर्म में हो सकती है। ओके, तीसरी चीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, अरेंजमेंट है ऑफ इंफॉर्मेशन। जिस कंटेंट में आप कोई भी सर्च कर रहे हैं, किसी अपने कंटेंट को या अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, वो आपने देखनी है कि उसकी अरेंजमेंट क्या है। इस पे भी हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तीसरा स्टेप ये है कि उसको उसकी ऑर्गेनाइजेशन देखनी है कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि जैसे आप टेलीफोन डायरेक्टरी में कोई कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढते हैं या एड्रेस ढूंढते हैं या किसी डिक्शनरी में कोई वर्ड देखते हैं, तो हमें पता है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, इनको कैसे अरेंज किया गया होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। डायरेक्टरी में जो है ना नेम ऑफ द पर्सन जो है ना वो देखना है तो वो लास्ट नेम से ज्यादातर जो है ना वो दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। इसी तरह से डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। तो ये अरेंजमेंट देखनी है। तीसरा स्टेप हमारा स्कैन करते हुए, एक तो ये कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, दूसरा ये कि हमारी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है हो सकती है, ठीक है। तीसरा ये कि उसकी अरेंजमेंट क्या है, जिस कंटेंट को हम सर्च कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, उसकी अरेंजमेंट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो जब ये चीज़ें हम अपने जहन में रखेंगे और इस तरह इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम स्कैनिंग करते हैं तो हमारी स्कैनिंग जो है वो ज़्यादा स्पीडी हो जाती है और हमारा टाइम बहुत कम वेस्ट होता है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता चीज़ों को सर्च आउट करने में, ठीक है। अल्फाबेटिकल है, नॉन अल्फाबेटिकल है, कैसी है उसके अरेंजमेंट। प्रोज, ओके जी, वी आर अगेन रनिंग आउट ऑफ टाइम। प्रोज, लुक एट द टाइटल, एट टाइटल, सब टाइटल, इलस्ट्रेशंस, वंस नो जनरल ऑर्गेनाइजेशन, इजियर टू अंडरस्टैंड। यानी अगर आप प्रोज या किसी टेक्स्ट को सर्च कर रहे हैं अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए, ये तो हमने छोटी छोटी चीजें डिस्कस की थी ना, वर्ड या फोन नंबर या एड्रेस या जो है ना टाइम ऑफ टीवी शो। इसके अलावा अगर कोई टेक्स्ट आप सर्च कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री टेक्स्ट की हमने बात की थी, हिस्ट्री टेक्स्ट में आपको किसी डेट पे कोई इवेंट चाहिए या कोई डेट जो है कोई इवेंट जो है उसकी डेट चाहिए, तो किसी टेक्स्ट को हम सर्च कर रहे हैं तो उसमें हम कैसे सर्च करेंगे। कोई चैप्टर है, कोई बुक है, उसका सबसे पहले आप टाइटल देखेंगे, जो थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि प्रोसेस है स्कीमिंग का, वही प्रोसेस आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। टाइटल देखें, लेकिन स्कीमिंग में आपने मेन आइडियाज निकालने हैं इसलिए आप पढ़ेंगे चीजों को, लेकिन इसमें पढ़ना नहीं है, इसमें हमने जस्ट देखना है। और वो क्या क्या, वो भी क्या क्या देखना है, टाइटल देखेंगे, सब टाइटल देखेंगे, यानी बुक का टाइटल आ गया, सब टाइटल में आप कह लें कॉन्टेंट्स आ गए, कॉन्टेंट पेज पे चैप्टर्स के टाइटल आ जाएंगे, वो सब टाइटल्स आप कह लें वो सब टाइटल्स हैं, यानी चैप्टर के जो टाइटल हैं वो सब टाइटल्स हैं। उसके बाद इलस्ट्रेशंस आ जाएंगी, इलस्ट्रेशंस आ जाएंगी,
यानी आपने जो है ना कोई बोल्ड फेस में कोई इटैलिसाइज किया हुआ वर्ड है वो देख लें, कोई चार्ट दिए हुए, ग्राफ दिए हुए, कोई डायग्राम्स, कोई पिक्चर्स दी हुई हैं, उनको आप उनसे गैस कर लेंगे कि इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। या जो है ना हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को आप पढ़ते हुए, हेडिंग और सब हेडिंग को पढ़ते हुए आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस हेडिंग के अंडर मेरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो आपने सिर्फ उसको उस पैराग्राफ को पढ़ना है जिसमें आपको लगता है कि हाँ इस हेडिंग के नीचे, इस हेडिंग के अंडर मेरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। वहाँ जब आपको ऑर्गेनाइजेशन का पता चल जाएगा तो आपके लिए जो है ना वो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको स्कैन करना इजी हो जाएगा। राइट, ओके जी। नेक्स्ट है कीप क्लू वर्ड्स इन माइंड। आपने क्लू वर्ड्स को अपने जहन में रखना है, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि क्लू वर्ड्स को आपने माइंड में रखना है। व्हेन यू फाइंड द सेक्शन मोस्ट लाइकली टू कंटेन द इंफॉर्मेशन यू आर रेडी टू बिगिन स्कैनिंग। जब आपने माइंड में, आपके माइंड में रखा हुआ है कि आपने क्या सर्च करना है और किस चीज को सर्च करना है, तो आप स्कैनिंग के लिए तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन डायरेक्टरी, क्लू वर्ड इज लास्ट नेम। जब आप टेलीफोन डायरेक्टरी में जो है ना किसी का एड्रेस या कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढ रहे हैं तो आपको आपको आपका क्लू वर्ड लास्ट नेम है उसका। आपने लास्ट नेम अपने माइंड में रखना है और फिर उसका एड्रेस देखना है। लुकिंग फॉर बेसबॉल स्कोर्स, क्लू वर्ड इज बेसबॉल। ओके, जल्दी से स्कैन करना है। स्कैन क्विकली। हाउ टू स्कैन क्विकली? पर्पज इज टू लोकेट इंफॉर्मेशन क्विकली। अ हाई रेट ऑफ स्पीड इज एसेंशियल। आपने जल्दी जल्दी से जो है ना वो लोकेट आउट करनी है कोई भी इंफॉर्मेशन, और आपकी स्पीड जो है ना वो बहुत हाई रेट पे होती